بہت بڑا نقصان ہوا ہے آپ کا. بہت بڑا نقصان ہوا ہے. میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا. میری بچی نے 12 پڑھی اور ویب ڈیزائننگ کا کورس سیکھا. کورس سیکھنے کے بعد اس نے کہا ابو جی مجھے نا ایک جگہ پر آفر آئی ہے تو انٹرنشپ پر نا کام کے لیے انٹرویو دینے جانا ہے. تو میں ساتھ گیا, اس کو انٹرویو وغیرہ دلایا اس کو. وہاں پر انہیں انٹرنشپ کرنا جو دے دی. تو روزانہ کے طریقے سے جو ہے نا صبح کے وقت میرا بیٹا چھوڑنے جاتا تھا اس کو, رات کو میں لینے جاتا تھا. تو جمعے والے دن میرا بیٹا چھوڑ کر آ گیا. تو 10:30 بجے کے قریب نے میری بیٹی کا فون آیا کہ ابو جی آج مجھے نا جلدی چھٹی ہو گئی ہے, آپ مجھے لینے آ جائیں. میں اپنے نا بھائی کے گھر بیٹھا ہوا تھا. تو نا ادھر میری ہمشینہ بھی آئی ہوئی تھی, بنوئی بھی آئے ہوئے تھے. عمرہ کر کے وہ لوگ آئے تھے, وہ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو بچے بھی سارے نا ادھر کھیل رہے تھے. میرے بچہ بھی کھیل رہا تھا, احمد بھی, ہانیہ, سارے مل کے کھیل رہے تھے. تو جب میں جانے لگا نا تو انہوں نے کہا جی چاچو جی ہم نے بھی آپ کے ساتھ آنا ہے. میرے بیٹے نے بھی کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ آنا ہے. تو میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, تھوڑا سا 15-20 منٹ کا سفر ہے, ہم واپس آ جاتے ہیں, چلو آپ کی سیر ہو جائے گی. میں لے کر چلا گیا. تو سارے راستے میرے بچوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. میرے بیٹے عبدالہادی نے نماز سنائی ساری, جیسے نماز پڑھتے ہیں سفر گزارنے کے لیے جاتے ہوئے. جب میں نے بیٹی کو پک کر لیا کے لیے واپسی پر لے کر آ رہا ہوں تو وہ بہن بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے. تو بابرا سٹاپ کے قریب جب میں پہنچا تو ایک موٹر سائیکل والا گزرا. اس نے کہا جی آپ کی برقع نیچے آ رہا ہے, اس کو آپ نا اوپر کر لیں. تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ آپ نا ابو جی موٹر سائیکل جو ہے نا سائڈ پر کر لیں. میں موٹر سائیکل فٹ پاس کے قریب کر دی. میری بیٹی نے برقع وغیرہ صحیح کرنے شروع کیے تھے. وہ ایسے ہی اس کی نظر پڑی کہ اس نے پیچھے سے دیکھا کہ ابو جی بس, اتنے الفاظ اس نے کہا کہ اور بس نے ہمیں رون دیا. میرے 2 بچے بس کے نیچے آ گئے ٹائر کے. ایک بچے کے یہاں پر ٹائر چڑھ گیا عبدالہادی کے, اور بیٹی کے یہاں پر اس کی ٹانگ بھی کاٹی گئی. بیٹا جو 2 بچے اور میں تھے آگے والے, وہ ہم اس فٹ پاس کی طرف چل گرے ہیں. مجھے بھی کچھ چوٹیں لگی, میرے بیٹے دونوں ان کو بھی چوٹیں لگی. اس کے سر پر بھی اٹھایا, عوام کٹھی ہو گئی. جو اس کی گاڑی تھی نا, بس تھی نا, وہ کافی دور جا کر رکی. تو میں نے اپنے بیٹے عبدالہادی کو دیکھا کہ بس کو بریک لگانے میں ٹائم لگا. ہاں, تو میں نے جب اپنے بیٹے عبدالہادی کو دیکھا تو اس کی جو آندھنیں تھیں نا ساری بہن نکل آئی ہوئی تھی. میں نے اپنی قمیض اتار کے اس کو لپیٹا, اور عوام نے میرے ساتھ مل کر نا بچوں کو اٹھایا. اور میری بیٹی, باقی بچوں کی طبیعت کیسی تھی؟ میری جو بیٹی تھی نا اس کے اوپر یہاں پر نا بس کا ٹائر چڑھ گیا تھا. اور انہوں نے بھی نا, عوام نے میرے ساتھ جو لوگ تھے وہاں پر موجود تھے, انہوں نے اٹھا کر فٹ پاس پر لٹا دیا. اور جو احمد اور عبدالہادی تھے اس کو میں نے اٹھایا, اور لوگوں نے نا 1122 والوں کو فون کرنا شروع کر دیا. تو ایک نے میرے گھر کا نمبر لے کر فون کیا, گھر اطلاع دے دی. اور رشکے والوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا دیر ہو جائے گی, آپ بچوں کو اٹھائیں تو چلیں میرے ساتھ. ایک کو میں نے اٹھایا, عبدالہادی کو, اپنے بیٹے کو, اور دوسرے نے. کتنا قیامت خیز لمحہ ہوگا اس ٹائم آپ کے لیے. اللہ نے ہمت دی, مجھے تو حوصلہ ہی نہیں تھا مجھے میرے ساتھ ہوا کیا. یہ اللہ نے ہمت دی ہے. پھر آپ ان کو ہسپتال لے کے گئے؟ پھر میں ان دونوں کو ہاسپٹل لے کر گیا ہوں. ان کو فٹ پاس پر اللہ کے حوالے کر کے چلا گیا. کہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو بھی نہیں دیکھا, اس کو کون سی چوٹ لگی ہے. میں نے تو اپنے بچے کی فکر پڑ گئی, چھوٹے بچے کی, کہ شاید اس کے سانس آ جائیں. پھر جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں, دیکھ کر ہی دل کو کچھ ہو جاتا ہے. جب ہاسپٹل میں پہنچا ہوں, گھر والے تھوڑی دیر بعد پہنچ گئے. جتنی دیر پر گھر والے پہنچے اتنی دیر تک وہ رشکے والے دونوں بھائی جو ہیں نا, اللہ ان کو جزا دے, اجر دے, اس کا میں تو نہیں دے سکتا, وہ ساتھ رہے ہیں. جب گھر والے پہنچ گئے ہیں, میرے بچے پہنچ گئے ہیں, میری بیوی پہنچ گئی ہے, ادھر جو میرا بھانجا ہے وہ پہنچا ہے. تو 1122 والے اس ٹائم پہنچ گئے تھے. انہوں نے, میرے بھانجے نے ان کو اٹھا کرنا جو اپنے گاڑی میں ڈالا اور جنرل ہاسپٹل میں لے گئے, کیونکہ میں ادھر چلڈرن ہاسپٹل میں تھا.
जिंदगी और मौत की कश्मकश में बच्चों के साथ लड़ रहा था। फिर अब्दुल हादी की तबीयत देखकर डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि आप ये बच्चा है ना अल्लाह को प्यारा हो गया है। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, झटके झुटके दिए कि उसको होश आ जाए, पर नहीं। वो दूसरा जो बच्चा अहमद था उसके साथ सर पर ना चोटें लगी थी और बाजू पर भी, कुछ टांगों पर। उसके पैर जो है ना सारे जलनी हो गए थे और 17 टांगे जो हैं उसके सर पर लगे और पाँव पर टांगे लगे हैं। सना की तबीयत कैसी रही? सना की उस वक्त मुझे मालूम नहीं थी। मेरी अपनी तबीयत बाद में ना जब घर वाले आगे संभाल लिया, मेरी अपनी तबीयत जो थी ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दिल की तरफ। ज़ाहिर बात है आपने अपने बच्चों को इस हालत में देखा जिससे देखकर कोई बाप ऐसे कोई देख ही नहीं सकता। मैं मजदूर आदमी, बुक बनने का काम करता हूँ दफ्तरों में, बैंकों में जाकर। बस बच्चों का ये जिंदगी मौत की कश्मकश में देखा मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मेरी बेटी के पता नहीं कितने अरमान थे, उसने पढ़ना था। उसने कहा कि मैं अभी सेकंड ईयर के पेपर देख के वे अब डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। हाँ जी, कोर्स सीखा उसने 6 माह लगा कर होने कदा से। तो उसके बाद ये जो जॉब मिली, अभी उसको 20-25 दिन ही हुए थे जॉब पर जाते हुए। सुबह बेटा छोड़ने जाता था, शाम को, रात को मैं लेने जाता था उसको। सना की तबीयत कैसी रही इस अरसे के दौरान? सना की तबीयत जो थी ना, उन्होंने ICU में डाला हुआ था और बाद में जब मेरा बेटा को मैंने हफ्ते वाले दिन जनाजा हुआ मेरे बेटे का, जनाजा करके हम वापस आए तो मेरे बेटे को फ़ोन आ गया कि उसकी जो है ना टांग काटनी है। तो मेरा बेटा चला गया, उसने पूछा जाकर अस्पताल वालों से क्या, मेरी बेटी की दाएं टांग जो है ना वो काट दी गई। यहाँ पर सारा ऑपरेशन हुए थे, 3 स्टिचें लगी हुई थी। टांग काट दी गई उस टाइम उसकी। आपको था कि चलो जान बच जाएगी, अगर चलो जिस्म का कोई अज़ा ना भी रहा, जान बच जाएगी। डॉक्टरों ने जैसे कहा कि अल्लाह करे आपकी बेटी की जान बच जाए, पर नहीं बची। जो अल्लाह को रज़ा था, मंजूर था, वही होना था। इंसान तो बस बेबस है। 17-18 साल उम्र होगी सना की। 19-20 साल के करीब उम्र थी। सारा कॉलेज पढ़ाया, उसको लिखाया कि या वो कहती अबू जी मैं आपका बाजू बनूंगी, मैं आपका बाजू बनूंगी। मैंने एक जगह पर ये हेड ऑफिस, अलर्ट बैंक का हेड ऑफिस में मैं काम करता हूँ जाकर दफ्तर, तो बुक बैंडिंग का उधर भी मैंने अप्लाई किया हुआ था। उसके अप्लाई करने की बात की थी। उन्होंने कहा आप ना वे उसकी CV ले आए तो आप आगे बात आपकी चलाएंगे। मेरे बेटी ने ना मुझे ना जुम्मे कहा था कि मैं ना हफ्ते भी इतवार वाले दिन आपको CV बना कर दे दूँगी, आप पीर वाले दिन ले जाना। मुझे क्या पता मेरी कुटिया चली ये कि स्पीडो ने जो जुल्म किया, आज मेरे साथ किया, कल किसी और के साथ कर देंगे। बड़ा अफसोस हुआ है और बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है आप लोगों के साथ। जैसे आप बता रहे हैं वो आपका साथ देने वाली थी, आपका बाजू बनना चाहती थी। बेशक बेशक। और अभी से वो कोशिशें कर रही थी इंटर के बाद ही कोर्सेज करके कि कहीं जॉब हो जाए, वालिद का हाथ बटा सकूं मैं। बेशक। और छोटा बेटा अब्दुल हादी हाफिज़ कुरान बन रहा था। कितने सिपारे हिफ्ज कर लिए थे? अभी वो पहला कायदा ख़त्म किया था तो अम्मा पारा शुरू किया था। तो जब मेरे साथ इधर से गया तो दुरूद शरीफ पढ़ता गया, मुझे पूरी नमाज उसने सुनाई। जब यहाँ पर घर से मैं निकला हूँ ना लेकर उसको, तो पूरे रास्ते उसने दुरूद शरीफ पढ़ता गया। तीनों बच्चे दुरूद शरीफ पढ़ते, मैं भी साथ दुरूद शरीफ। जब उसने सेंटर में, नवाज शरीफ पार्क के सेंटर में हम पहुँचे हैं तो मेरे बेटे ने कहा अबू जी मैं नमाज सुनाता हूँ आपको। फिर उसने नमाज सुनाई मुझे क्या पता कि वापसी पर ये हो जाना है। सारी दुनिया भी लोगों को, बच्चे को लेकर जाते हैं, कोई सैर पर लेकर जा रहा है, कोई कहीं लेकर जा रहा है। मेरे भी बच्चों ने कहा सैर हो जाएगी, थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा, घर बैठे हैं। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हादसा पेश आ जाएगा, इस तरह 2 बच्चे अपनी जान से चले जाएंगे। मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरी तो कमर टूट गई है। और एक बात आपको बताती चलूं, जिस बस के नीचे इनके 2 बच्चों को कुचला गया है, बाकी बच्चों को जख्मी किया गया है, वो एक सरकारी बस है, स्पीडो बस है वो। आप मुझे बताएंगे उसके बाद जब आपने बताया कि स्पीडो बस ने थोड़ी दूर जाकर ब्रेक लगाई
उसके बाद आपने ड्राइवर वगैरह को रोका? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं रोका, मैंने अपनी औलाद को देखा पहले। अवाम जो मेरी मोटरसाइकिल भी थी ना, मेरी मोटरसाइकिल जो थी ना वो भी घसीटती हुई उसकी काफ़ी दूर जाकर उसके साथ ही लगी रही है। उसके जो बस के आगे वाले टायर थे वो अब्दुल हादी और सना के ऊपर से गुजर चुके थे। जी जी जी। तो फिर अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? पुलिस वालों ने क्या किया है? पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया, मौके पर लोगों ने उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। तो इतवार वाले दिन जो अभी वो हिरासत में है? हाँ जी, इतवार वाले दिन जो है ना उसको बुलाया गया था, हमें भी बुलाया, अदालत में पेश हुए और 5 दिन का रिमांड उसने उनको मिला है ताकि कार्रवाई जो है ना हो सके सही तरीके से। माफ़ी वगैरह मांगी है उसने आपसे? कोई माफ़ी वगैरह नहीं मांगी उसने, ड्राइवर ने आपसे? उधर मांगता रहा है, बस हम तो माफ़ करने वाले हैं सारे। अल्लाह ही माफ़ कर, सब अल्लाह जो अल्लाह के रसूल जो सबको माफ़ कर दे तो हम क्या। वो दुख तो आपका नहीं भर सकते, वो जख्म तो नहीं भर सकते। आपने जवान बेटी गवाई है अपनी, कोई भी अपना बेटा आपने गवाया है। औलाद को देख कर ये आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात करने की सिचुएशन में नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर से हमसे बात की है। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ औलाद को लेकर, मेरी बाद में तबीयत ख़राब हो गई, मैं वहाँ पर बेहोश हो गया हूँ। मेरे बेटे ने उठाकर, मेरे दूसरे रिश्तेदारों ने उठाकर मुझे जनरल हॉस्पिटल में ले गए थे। मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। जहाँ मैं सुबह 6:30 बजे फिर मैं तबीयत सेट हुई है, फिर उन्होंने डॉक्टर ने मुझे वापस भेजा जुम्मेवार। बिल्कुल ऐसे है, औलाद को थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाए तो माँ बाप नहीं देख सकते हैं। इस तरह अपनी आंखों के सामने बच्चों को देखना कि उनके ऊपर से टायर गुजर जाएं, उनकी अंतरियाँ बाहर आ जाएं। मेरी मरियम नवाज से गुजारिश है कि मुझे सही तरीके से इंसाफ है। आज मेरे साथ हो रहा, कल किसी और के साथ हो जाएगा। जो हो रहा है दुनिया में ये तो चलता रहा। ये ज़िंदगी मौत तो हर किसी की आनी है, हर किसी ने मौत का जायका तो चखना ही चखना है, जो टाइम लिखा हुआ। फिर भी ये स्पीडो वाले, अल्लाह उनको नेकी की हदायत दे कि बस को सही तरीके से चले। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अवाम की सहूलियात के लिए बनाई गई है, चलाने के लिए, ताकि अवाम को सहूलत मिल जाए, कि अवाम को सहूलत के बजाय अवाम को अजाब दे रहे। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ऐसे है, हमारी भी हुकाम बाला से यही अपील है कि स्पीडो बसेस तो आपने चला दी हैं, आवाम को सहूलियात तो दे दी हैं, सफ़र की आसानी तो कर दी है, लेकिन ड्राइवर्स को जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तब आप इतनी तमीज़ भी सिखा दें कि आपने कितने फासले से ब्रेक लगानी है, कितने फासले पे रुकना है। अगर आप मेन रोड पर भी चल रहे हैं तो आप ये चीज़ें देख लें। ये सफ़र की आसानी के दौरान आप 2 बच्चों की जान ले गए हैं, सारी उम्र का दुख दे दिया आपने उन वालिदैन को। तो ये हुकाम बाला से हमारी भी अपील है लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से कि आप काइंडली उस ड्राइवर को देखें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आइंदा जो ड्राइवर्स हैं उनको सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी जाए ताकि किसी और ऐसे नागहानी सूरत हाल से बचा जा